Hello everyone, greetings of the day. We are going to discuss conjunctions in our today's video. हमारे नॉलेजदारी चैनल पर आप निरंतर बने रहें और अपने इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर के लेटेस्ट अपडेशन और इम्प्रूवमेंट के लिए अपने आप को अपडेट करते रहें। तो आज हम यहाँ पर कंजक्शंस के बारे में जानेंगे। हम यहाँ पर कुछ जो कंजक्शंस पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम अदर रिमेनिंग कंजक्शंस। तो first of all, we will try to know the definition of the word conjunction. The definition is, conjunction is a word that joins two sentences and words. दो sentences and words को join करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो conjunction कहलाते हैं। So what are these? Look here, for example, there are this two sentences, two words. नीरज and पंकज are friends. एंड को दो वर्ड्स के साथ जोड़ा गया है, नीरज एंड पंकज। इन अनदर एग्जाम्पल, टेक जूस एंड गिव स्वीट्स। टू imperative sentences are here and these are joined by and here. And the next is, we will study the following conjunctions in this lesson because it is not possible for us to include all the conjunctions in one lesson, so we are making it in parts. In today's first part, we will study the following conjunctions: number 1, and; number 2, as well as; number 3, not only but also; number 4, both and; number 5, either or; number 6, neither nor; and the next is so that. We will study all these conjunctions today. Now, without wasting time, let us proceed towards the lesson. Before we proceed, I would like to make a request to all of you to please subscribe the channel if you have not subscribed yet, and also we are looking forward for your good comments. तो आज हम एंड के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। Now this means also or in addition to। इसका मतलब ये भी होता है कि इसको also और in addition to के रेफरेंस में यूज किया जाता है। How? It is used to add two or more words and sentences. ये दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। And is used when two subjects are common in a sentence. जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट कॉमन होते हैं तब हम एंड का यूज करते हैं। नाउ लुक हियर, दिस इज अ पैटर्न। सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ड, देन and then the second word. So here is an example: I like sweets, I like fruits. Now first the common subject is I, and then there are two different subjects, words, sweets and fruits. So how these are joined here? I like sweets and fruits. And the next is, do it fast, do it quickly. These are two imperative sentences here, and how we have joined here, look, do it fast and quickly.
यहाँ अगेन दो वर्ड्स को जो डिफरेंट है उनको जोड़ा गया है. नेक्स्ट इज ममता इज इंटेलिजेंट, शी इज पोलाइट. नाउ द वर्ड शी इज ऑल्सो रेफरिंग ममता, and two different words are intelligent and polite. So look here, Mamta is intelligent and polite. So we have joined with the help of and here. Now the next use of the word and is used when the two subjects, when the subject is not common in two sentences. जब different subjects हो तब and का use किया जाता है. How? This is the pattern. Subject first, then and, then subject second, and then common part of the sentence. In this manner, we join two sentences. Look here, Nidhi is beautiful, Niru is beautiful. Two different subjects, Nidhi and Niru, are here, and the common part is beautiful. So look here, Nidhi and Niru are beautiful. Because R is used here because of the two subjects, that makes it plural. Now the next is Guddu is a good player, Ravi is a good player. There are two different subjects, Guddu and Ravi, and the next part is common. Guddu and Ravi are good players. The next is Rajkumari went to Delhi, Sita went to Delhi. Now two different subjects, Rajkumari and Sita. इसको कैसे जोड़ा गया है देखिए, राजकुमारी एंड सीता वेंट टू दिल्ली, इस तरीके से जोड़ा गया है. दो सब्जेक्ट हो गए इसलिए. यू आर इनवाइटिंग मी फॉर फूड, शी इज इनवाइटिंग मी फॉर फूड. यहां दो सब्जेक्ट हो गए, यू और शी, और इसको बाद में किस तरीके से जोड़ा गया है देखिए, यू एंड शी, और कॉमन पार्ट आ गया आर इनवाइटिंग मी फॉर फूड. या आर का यूज इसलिए किया गया है बिकॉज टू वर्ड्स ज्वाइन किए गए हैं, सो प्लूरल बन गया है. यू और शी को ज्वाइन करने से आर का इस्तेमाल हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं एज वेल एज. इसका यूज किया जा रहा है. नाउ सी हियर हाउ इट इज यूज्ड टू ऐड टू इक्वल वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये दो समान शब्दों या शब्द समूहों को जोड़ने का कार्य करते हैं. हाउ? एडिंग टू सेंटेंसेस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. When there are two sentences and these two sentences contain two different subjects. So how? Look here. In such sentences, except subject, rest of the sentence is common. Subject के अलावा बाकी के sentence जो है वो common होते हैं. He is fond of mango. I am fond of mango. Now you see the rest of the sentence is similar but the subject is different. So how these are combined here? He as well as I is fond of mango. यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि as well as में जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है तो वो फर्स्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा. इसलिए यहाँ पर ही के साथ में इसका यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम इसका यूज कर रहे हैं. इसको यहाँ पर भी दिया गया है कि यहाँ पर क्रिया एज वेल एज से पहले आने वाले कर्ता के अनुसार लगेगी. इस चीज को आप नोट कर लीजिए बिकॉज
वी ऑफन कमिट मिस्टेक्स इन आवर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीज है। नेक्स्ट देखिए, दे आर क्लेवर, शी इज क्लेवर, टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर हियर, और दोनों की नेचर भी अलग अलग है। इसको किस तरीके से जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर दे है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी दे के अकॉर्डिंग ही आएगी। लुक हियर, दे एज वेल एज शी आर क्लेवर। नाउ द नेक्स्ट इज यू वर एब्सेंट फ्रॉम क्लास, आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम क्लास। नाउ how we have joined? You as well as I were absent from class. Next is, आपको इसको इन्वर्जन करके भी जोड़ सकते हैं, सिंगुलर भी लगा सकते हैं। Now the next is, यहाँ पर एक नोट ध्यान देने की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको समझने हैं वो देखिए। We can add two sentences with the help of and as well as both and. इनके साथ भी जोड़ा जा सकता है। अक्सर हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड योर कंफ्यूजन, समथिंग इज बीइंग टोल्ड टू यू हियर। इफ बोथ दी सेंटेंसेज आर विद डिफरेंट नंबर एंड पर्सन्स, देन दी हेल्पिंग वर्ब विल बी डिफरेंट। अगर दोनों जो सेंटेंसेज हैं उनका नंबर और पर्सन जो है वो अलग अलग है, तो हेल्पिंग वर्ब भी अलग अलग ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, राजू एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स, एंड से जोड़ा गया है। बोथ राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, फिर बोथ हैंड से जोड़ा गया है। ऊपर में एंड से जोड़ा था और इसमें बोथ हैंड से जोड़ा है। पहले वाले वाक्य में दो अलग अलग कर्ताओं को एंड और बोथ हैंड से जोड़ा गया है, अतः क्रिया बहुवचन में आ रही है। द नेक्स्ट इज, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम इज गुड फ्रेंड। यहां पर अलग हो गया है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए, राम एज वेल एज श्याम इज गुड फ्रेंड। यहां पर जो क्रिया लगाई गई है, तीसरे वाक्य में क्रिया बट ऑल्सो के बाद आने वाले कर्ता के अनुसार लगाई गई है। इसी प्रकार एज वेल एज में पहले वाले कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ बट ऑल्सो में श्याम है इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, और एज वेल एज में राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज का यूज किया गया है। So please note it down. This is very important from your examination point of view. Now the next is, the next part है not only but also. इसका यूज हमने कैसे किया है देखिए। Adding two different subjects. Different subjects को how we have worked here in adding them. Mohan likes rasgulla. Sohan likes rasgulla. Mohan and Sohan are two different subjects. So look here, not only Mohan but also Sohan likes rasgulla. Now the next is not only plus subject plus but also plus subjects and then the common part of the sentence. This is our sentence pattern in the joining of not only but also. Now the next is adding two similar subjects. When there are two similar subjects, how we join them with the help of not only but also? See here. Common part plus not only plus first different subjects plus but also plus second different subject. ये हमारा स्ट्रक्चर इसमें रहता है। इसको देखिए, द रोबर्स लूटेड द विलेजर्स, दे किल्ड देम। अब इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स तो एक ही हो गया, क्योंकि दे जो है वो प्रोनाउन है फॉर रोबर्स, एंड हाउ दीज आर द इंफॉर्मेशन इन दीज टू सेंटेंसेस इज डिफरेंट।
So how we have worked here, the robbers not only looted the villagers but also killed them. In the same manner, she reads a lesson, she writes a story. Subject is common, but the information in this sentence is different. तो इसको कैसे जोड़ा गया है? She not only reads a lesson, but also writes a story. इस तरीके से जोड़ा गया है. Now the next is both and. It is used to add two words or sentences. इसमें both and का यूज किया गया है adding two different subjects. दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ने के काम में कैसे लिया जा रहा है? देखिए, both plus first subject, then and, then second subject, and then the common part of the sentence. So here is the example. Kamala went to Jaipur, Rita went to Jaipur. दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए. इसको कैसे जोड़ा गया है? Both Kamala and Rita went to Jaipur. Now the next is adding two similar sentences. दो एक ही प्रकार के वाक्यों को कैसे जोड़ा गया है? Here is the example. Common subject plus both plus first different words plus and plus second different words. तो इसको इस तरीके से जोड़ा गया है. सरोज brought a sari, सरोज bought a shirt. दोनों को यहां पर कॉमन सब्जेक्ट हो गया सरोज. अब इसमें इंफॉर्मेशन अलग अलग है, तो इसको कैसे जोड़ा गया है? देखिए, सरोज बॉट बोथ ए साड़ी एंड ए शर्ट. इस तरीके से इसको जोड़ा गया है. नाउ द नेक्स्ट इज द कार इज न्यू, द कार इज लग्जूरियस. एंड हाउ वी हैव जॉइंड दिस टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन. The car is both new and luxurious. Now the next is the another is either or. So how we have joined it? Adding two sentences when two different options are there. जब दो ऑप्शन हो तो उनको कैसे जोड़ा गया है? either or से देखिए, either plus first subject plus or plus second subject plus common part of the sentence. So teachers have done their job, boy has done his job. अब यहां पर देखने की बात है कि either teachers or boy has done his job. इस तरीके से हम इस काम को करेंगे. You are driving a car, I am driving a car. The common part of the sentence is the same, but the subjects are different. Either you or I am driving a car. Adding two sentences when two subjects are similar. दो sentences को जोड़ना जब दो सब्जेक्ट एक ही प्रकार के हों. कैसे? कॉमन सब्जेक्ट प्लस ईदर प्लस फर्स्ट ऑप्शन, देन और, देन सेकंड ऑप्शन. देखिए, आई सेंट बुक्स, आई सेंट मैगजीन्स. इसको कैसे जोड़ा गया है? आई सेंट ईदर बुक्स और मैगजीन्स. क्योंकि इंफॉर्मेशन को जोड़ा गया है, इसमें सब्जेक्ट सेम है. यू मे टेक इट, यू मे लीव इट. नाउ हाउ इट इज यूज्ड एडेड? यू मे ईदर टेक और लीव इट. इस तरीके से हम इसको जोड़ते हैं. नेक्स्ट है नीदर नॉर. अगर ध्यान से देखा जाए तो ईदर और की तरह से ही इसमें भी हम नीदर नॉर का
और उसी तरीके का यूज करते हैं। इसमें नीदर की वजह से और नॉर की वजह से नेगेटिव सेंस का यूज होता है। एडिंग टू सेंटेंसेस व्हेन टू डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर, जो दो ऑप्शन डिफरेंट हो तो उनको कैसे जोड़ा गया है। नीदर प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस नॉर प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस, यहां जोड़ा गया है। देखिए, टीचर्स हैव नॉट डन देयर जॉब, बॉय हैज नॉट डन हिज जॉब। हमने एग्जाम्पल भी वही लिए है जिससे कि आप आराम से समझ सकें। देखिए, नीदर टीचर्स नॉर बॉय हैज डन हिज जॉब, यहां इस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, यू आर नॉट ड्राइविंग कार, आई एम नॉट ड्राइविंग ए कार। नीदर यू नॉर आई एम ड्राइविंग ए कार। नेक्स्ट इज एडिंग टू सेंटेंसेज व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर सिमिलर। जब दो सेंटेंस सिमिलर हो तो दो वाक्यों को कैसे जोड़ा जाएगा। देखिए, कॉमन सब्जेक्ट प्लस नीदर प्लस फर्स्ट ऑप्शन प्लस नॉर देन सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट इज आई डिड नॉट सेंड बुक्स, आई डिड नॉट सेंड मैगजीन्स। दोनों में जो ऑप्शन है वो अलग अलग है, बुक्स और मैगजीन्स। इसको जोड़ा गया है। देखिए, आई सेंड नीदर बुक्स नॉर मैगजीन्स, इस तरीके से जोड़ा गया है। माई टीचर्स आर नॉट टीचिंग वेल, दे आर नॉट ट्राइंग वेल। इसको देखिए, माई टीचर्स आर नीदर टीचिंग वेल नॉर ट्राइंग वेल, इस तरीके से इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट आता है सो दैट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस पैटर्न से हम सेंटेंस जो हमारा क्वेश्चन में होता है वो दिया जाता है। इसको किस पैटर्न से जोड़ा जाता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस पैटर्न पे जोड़ा जाता है। तो देखिए किस तरीके से जोड़ेंगे हम इसको। द स्टोन इज वेरी हैवी, आई कैनॉट लिफ्ट इट। यहां पर ऊपर वाला पैटर्न लग रहा है, वेरी वाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव। हैवी जो है वो एडजेक्टिव हो गया। सो हाउ इट इज यूज जॉइंड हियर, द स्टोन इज सो हैवी दैट आई कैनॉट लिफ्ट इट। इस तरीके से इसको ऐड किया गया है। नाउ द नेक्स्ट इज ही इज वेरी ओल्ड, ही कैनॉट वॉक। तो इसको कैसे जोड़ा गया है? ही इज सो ओल्ड दैट ही कैनॉट वॉक। नाउ द नेक्स्ट इज ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही कैन सक्सीड। इसको कैसे जोड़ा गया है? ही वर्क्स सो हार्ड दैट ही कैनॉट सक्सीड। इस तरीके से हम इसको जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए, सो दैट सेंटेंसेस को टू सेंटेंसेस से को कैसे जोड़ते हैं। एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि सो दैट वाले सेंटेंस दिए हुए होते हैं और इनको टू में जोड़ते हैं। यहाँ पर इस TOO को टू बोला जाता है, ये बड़ा ऊ की मात्रा इसमें इस्तेमाल होती है। So while pronouncing this two, do not commit the pronunciation error. So look here, subject plus verb plus to plus adjective plus to plus verb. इस तरीके से हमारे को एक सेंटेंस दिया जाएगा, इसको जोड़ना है इस पैटर्न से। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव plus that plus subject plus cannot or could not plus subject. देखिए, he is too poor to buy a car.
अब इसको so that से जोड़ना है. He is so poor that he cannot buy a car. इसी तरीके से he was too tired to run fast. He was so tired that he could not run fast. could से जोड़ लिया उसको can से जोड़ लिया. The next is the house is too costly to be purchased. The house is so costly that I cannot be purchased. It cannot be purchased. Next is she speaks too fast to be understood. She speaks so fast that she cannot be understood. And with this we come to the end of this video. Thank you for watching. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा. In the next part we will try to study the different conjunctions and then some exercises will follow. Thank you very much.